Potential energy of a dipole, time period of rotation, time period of SHM, potential energy of a bar magnet in the presence of external magnetic field. This also we did last class. Potential energy of bar magnet in external field. पहली बात पोटेंशियल एनर्जी आएगी कहां से, क्योंकि एक्सटर्नल फील्ड में, in the external field all the dipoles want to be aligned along the, can go that side agar disturb ho raha hai. Bar magnet is if it is free to oscillate or rotate, it will always be aligned itself in the direction of external magnetic field. थोड़ा सा रोटेट करने के लिए हमें वर्क करना पड़ेगा अगेंस्ट दैट रीस्टोरिंग टॉर्क. So if it is kept at an angle theta, the angle between dipole moment and magnetic field is theta. In that theta, we have to do some work, and that work will be stored in the form of potential energy. This I think we did last class, but this is the last topic that we did. So एक बार quickly revise कर लेते हैं in case we हमने short form में quickly किया था. Magnetic field due to dipole in all the three positions. Equatorial, axial and general position. मैग्नेट को मैग्नेटिक फील्ड से थीटा एंगल पर अगर हम रोटेट कर दें तो किसी को पकड़ के करना पड़ेगा. इन दैट पोजीशन देयर विल बी सम वर्क डन एंड दैट वर्क डन विल बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. sin थीटा का इंटीग्रेशन होता है cos थीटा माइनस cos थीटा. सो पोटेंशियल एनर्जी फॉर्मूला ऑफ अ डाइपोल इज माइनस mv cos थीटा. थीटा इज इक्वल टू 0 स्टेबल इक्विलिब्रियम. स्टेबल इक्विलिब्रियम से डिस्प्लेस करेंगे तो कुछ SHM restoring torque आ जाता है, and because of which it start performing SHM with the time period 2 pi under root I upon m into b. Theta 0 degree is a stable equilibrium position. Given a small displacement, there will be SHM, and SHM time period is again similar to that of electric dipole SHM. Potential energy minus mb cos theta, so that gives the position of zero potential energy also. In the case of point charge, we take infinity to be zero potential energy. In the case of dipole, magnet dipole, when theta 90 degree or magnet is perpendicular, potential energy is zero. Right? Okay. किसी भी पोजीशन में डाइपोल को रखने के लिए we have to do the work, and the work done against that restoring torque is stored in the form of potential energy. एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन में रोटेट करने के लिए we have to do some work. Work done in rotating a dipole from one position to another position. It is change in position, so there will be change in potential energy. Work done in rotating a dipole is equal to change in potential energy. That's final potential energy minus initial potential energy minus mb cos theta 2 minus of minus mb cos theta 1. mb common, cos theta 1 minus cos theta 2. The work done in rotating a dipole from theta 1 to theta 2 is given as mb cos theta 1 minus cos theta 2. Right? Okay. So again, formulas are similar to that of electric dipole. Electric dipole के लिए था P cos theta 1 minus cos theta 2. Stable equilibrium से unstable equilibrium में rotate करने के लिए work करना पड़ेगा, and unstable से stable में वो अपने आप आ जाएगा. So work done will come out to be negative. किसी भी dipole को external field के against
रोटेट करने में वर्क लगेगा एंड दैट वर्क रिक्वायर्ड और वर्क डन will be defined as its potential energy in that particular position. So this is the magnetic dipole or magnet or magnet dipole moment of a rotating charge and an electric current carrying wire we have done in the last chapter also. Magnet को rotate करने में work करना पड़ता है. Magnet bar magnet as a is again like an equivalent solenoid. एक छोटे से वायर की छोटे से लूप की मैग्नेटिक फील्ड थी. बार मैग्नेट को हम अज्यूम कर सकते हैं एज एन इक्विवेलेंट सोलेनॉइड. द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड इज ऑलमोस्ट लाइक दैट ऑफ exactly similar to that of a solenoid. Having a number of turns very closely packed entire on this entire length. So the magnetic field inside will be parallel. Parallel means almost like a uniform line, and outside magnetic field. So every bar magnet can be assumed as combination of magnetic dipoles in the form of circular coil. So every bar magnet is an equivalent solenoid. The turns are very closely packed. Right. Now, next is बार मैग्नेटिक फील्ड प्रॉपर्टी. ठीक है, इसको डिराइव करने की जरूरत नहीं है. ये मैथमेटिकली हम डिराइव भी कर सकते हैं, बट वी विल नॉट डू इट अननेसेसरली. ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ बार मैग्नेट इज सिमिलर टू दैट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ लॉन्ग सोलेनॉइड. अंदर यूनिफॉर्म होती है एंड बाहर इट इज लाइक अ वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड. जस्ट आउटसाइड इट इज वेरी वीक. जस्ट आउटसाइड इट इज जीरो फॉर अ लॉन्ग सोलेनॉइड. सो किसी भी मैग्नेट को हम एक इक्विवेलेंट सोलेनॉइड के जैसा अज्यूम कर सकते हैं. Properties of magnetic field lines and magnetic field. Magnetic field is the imaginary field lines, imaginary lines drawn to represent the direction and relative strength of magnetic field, similar to the electric field line property. So बाकी सारी properties तो similar होती हैं as that of I think we discussed this, but again just to recap, magnetic field lines are always in the form of closed loop. Magnetic field lines do not intersect. Magnetic field lines क्योंकि जहां पर इंटरसेक्ट करेंगे वहां पे दो डायरेक्शन हो जाएंगी. सो रेस्ट ऑल द अदर प्रॉपर्टीज आर सेम एक्सेप्ट electric field lines can never form closed loop and magnetic field lines will always be in the form of closed loop. Magnetic field lines are always in the form of closed loop. And that is why अगर हम कोई भी एक closed Gaussian surface consider करते हैं, magnetic field lines are always in the form of closed loop. Outside from north to south pole and inside from south to north pole due to a bar magnet. So if we consider any loop for a magnetic field line to apply the Gauss law, अगर एक सिंगल लूप है फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. सिंगल लूप के लिए मैग्नेटिक फील्ड इज मैग्नेटिक फ्लक्स इज B into A for a single surface. But if it is a closed loop के लिए flux was defined as flux out minus flux in. Flux जो अंदर जाता है, flux outward minus flux inward. In both the cases, closed surface के लिए अगर हम कोई भी Gaussian surface लेते हैं, then the magnetic flux through a closed surface is defined as phi out minus phi in. For any closed surface, when we integrate B over area vector, that is the line integral of magnetic field for a closed surface, एक तरफ से magnetic field lines अंदर जाएंगी और दूसरी तरफ से बाहर निकलेंगी. So phi out and phi in is always equal. Then magnetic flux through a closed surface is always zero. This is called Gauss law for magnetism. इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए था E dot dA is total charge enclosed divided by epsilon naught.
In the case of magnetism, the B dot dA or the Gaussian surface, closed Gaussian surface, total magnetic flux is always zero, which also proves that a single monopoles do not exist. हम मैग्नेट को ब्रेक करते जाए तो जितना ब्रेक करेंगे उतने ही छोटे छोटे पोल्स बनते जाएंगे. मोनोपोल्स डू नॉट एग्जिस्ट. एक सिंगल नॉर्थ पोल और सिंगल साउथ पोल एग्जिस्ट नहीं कर सकता अकॉर्डिंग टू द गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म. Another consequence that we can draw, क्योंकि जितनी फील्ड लाइंस निकली हैं उतनी वापस अंदर भी जानी है. This has to go. So the pole strength will always be same. जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या था, एक तरफ +2 एक तरफ +1 कूलम, तो आधी फील्ड अंदर आएंगी और बाकी आधी इन्फिनिटी पे चली जाएंगी. इन दिस केस दैट वोंट बी पॉसिबल. जितनी फील्ड लाइन एक पोल्स पे प्रोड्यूस हो रही है दूसरे पोल पे सेम नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन हैज टू इंटर. तो अगर हम इसको सपोज यहाँ से ब्रेक भी कर देते तो साइड के सरफेस होंगे वो बिहेव करेंगे एज अ साउथ पोल. You understood this last point? It's a conceptual point important for MCQ. अगर सपोज हम दूसरी तरफ का मैग्नेट पोल ऐसा कुछ बनाते हैं, सपोज वी चेंज द एरिया, तो स्टिल जो भी फील्ड लाइन निकल रही है उनको वापस तो जाना ही है. All the magnetic field lines which are originated from north pole has to enter the south pole, क्योंकि ये हमेशा क्लोज लूप के फॉर्म में ही रहेंगे. So जो भी फील्ड लाइन निकली है उधर से अंदर जाएगी. So it is not possible that किसी एक मैग्नेट के दोनों पोल की स्ट्रेंथ डिफरेंट हो. That is not possible. One magnet, both the poles, irrespective of their shape, will always be of the same strength. The magnetic poles will always have same strength because जितनी फील्ड लाइन एक तरफ से प्रोड्यूस हो रही है दूसरे पे उतनी ही फील्ड लाइंस अंदर भी जाएंगी. So that's why it has to be always of same strength. Correct? समझ आ रहा है? राइट, ठीक है. अब बढ़ते हैं नेक्स्ट. अर्थ के अंदर भी एक मैग्नेटिक फील्ड है, अर्थ के साथ भी एक मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड है. अर्थ हैज इट्स ओन परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड and not just earth, many planets have the magnetic field lines associated with it and it has a very important role. So पहला reason तो first thing why there is a magnetic field associated with earth or other planets. What is the cause? Is there any bar magnet present inside or so? The earth and all the other planets, those planets which have core, सभी planets के core हैं. No. All planets have some core inside, molten metallic core. Yes or no? Sir, Yes. some don't have metallic. कौन से में? जैसे for example, Sir, Jupiter. जुपिटर पे मेटलिक कोर नहीं है. Yes sir, नहीं है. सर नेपट्यून पे भी. Okay. Like the जितने भी मून है, जैसे मून मतलब अर्थ का मून, मून सैटेलाइट, नेचुरल सैटेलाइट, they don't have a metallic core. So they don't have its own magnetic field. जैसे मून की अपनी magnetic field नहीं है. Right? Moon does not have a magnetic field because it does not have a metallic core inside it. So Earth's magnetism, the reason of Earth magnetism, there are many theories have been explained. Earth's magnetism, Earth has its own magnetic field, Earth behave like a permanent magnet, और इस मैग्नेटिक फील्ड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारे डेली लाइफ में. वी विल डिस्कस अ बिट ऑन इट. सो पहले तो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड आई कहां से, दैट एक्सप्लेनेशन. अर्थ ऑलमोस्ट लाइक अ स्फीयर, इट इज स्लाइटली टिल्टेड ऑन इट्स एक्सिस एंड अर्थ की रोटेशन की डायरेक्शन किधर है, वेस्ट टू ईस्ट और ईस्ट टू वेस्ट. नॉर्थ पोल, साउथ पोल. This is suppose equator
east and west. Earth is rotating in which direction? East to west or west to east? West to east. West to east. Earth is rotating from west to east with some constant angular velocity. इसलिए एक fixed time के बाद day और night होते हैं. This is called North Pole. This is South Pole. Now we will specify that the axis on which Earth is rotating, the poles lying on it, is called geographic North Pole. This is called geographic axis, and similarly geographic South Pole. Earth के अंदर जो लावा है molten metal core है, that is in the liquid state because of being tilted, वो भी थोड़ा tilted है, and it is such a high temperature कि सारे metal से electrons बाहर निकल आते हैं by the ionization. With the spin of electron, with the spin of Earth, electron also spin from west to east. So if electron is spinning from west to east, current will be from east to west. Electron west to east जा रहे हैं, so current will be east to west. Current यानी east से बाहर निकल के west में जा रही है, and such many circular loops we can assume, but this is slightly tilted क्योंकि liquid है, tilt करोगे तो एक तरफ से bend हो जाएगा. Because of this, clockwise अगर हम ऐसे अपना hand को गोल करते हैं, east से current बाहर निकल रही है, west में जा रही है. Electron west to east, current east to west. So thumb किधर से आएगा? नीचे की तरफ, which means the Earth magnetic field will originate from the south direction. जिधर अर्थ की एक्सिस अर्थ की साउथ डायरेक्शन है, उस डायरेक्शन में अर्थ के मैग्नेट का नॉर्थ पोल है. So, इसके अंदर एक मैग्नेट हम अज्यूम कर सकते हैं. दैट मैग्नेट इज नॉट इन अलाइनमेंट विद द जियोग्राफिक एक्सिस. दैट मैग्नेट हैज some 11.3 degree between the earth axis of rotation and the magnetic axis. अर्थ की जियोग्राफिक एक्सिस और मैग्नेटिक एक्सिस के बीच में कितना एंगल है? 11.3 डिग्री. कितना एंगल है? 11.3 डिग्री इज द एंगल बिटवीन अर्थ जियोग्राफिक एक्सिस एंड मैग्नेटिक एक्सिस. ये मैग्नेटिक एक्सिस वो है जहां पर अर्थ का हम मैग्नेट अज्यूम कर सकते हैं, एंड उसकी लोकेशन भी बुक में लिखी है, कितने डिग्री लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड. दैट्स नॉट रिक्वायर्ड. जिस पोजीशन से ये बाहर निकल रही है, ये नॉर्थ पोल. अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड, द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ विल स्टार्ट फ्रॉम साउथ. अर्थ के साउथ डायरेक्शन में अर्थ के मैग्नेट का नॉर्थ पोल है. सो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस विल ओरिजिनेट फ्रॉम द नॉर्थ going to the south. So this will be the shape of Earth's magnetic field. अर्थ के साउथ की तरफ से निकल के और नॉर्थ की तरफ जाती है, क्योंकि जिधर अर्थ का साउथ पोल है उधर अर्थ के मैग्नेट का नॉर्थ पोल है, एंड वाइस वर्सा. Right? Okay. So that is the shape of Earth's magnetic field. ये magnetic field अर्थ को चारों तरफ से सराउंड करती है, and it protects us. How does it protect? Sir, from Earth की solar wind. magnetic field. हाँ बेटा. Sir, it protects us from solar wind. Solar wind. Solar wind. तो फिर हमें सनलाइट कैसे मिलेगी? सोलर विंड नहीं, थोड़ा और स्पेसिफिक. तुमने पढ़ा है ट्यूसडे थर्सडे बैच में लग रहा है? नहीं सर. सर नेशनल ज्योग्राफिक पे पढ़ा था. नेशनल ज्योग्राफिक. क्या बात है, वेरी नाइस. आज भी कोई बच्चा ऐसा है जो देखता है नेशनल ज्योग्राफिक? सुन के अच्छा लगा. कब देखा था, बचपन में क्या अभी? सर कुछ टाइम पहले देखा था. हाँ? सर कुछ महीने पहले देखा था. देखते हो कभी कभी, मतलब. नेट जियो और हिस्ट्री एंड डिस्कवरी अब तो सब एक ही जगह पे आ गया, मोबाइल के अंदर है ना.
बस मोबाइल पे इंस्टा, मोबाइल पे, इसके बाहर की दुनिया तो देखी नहीं आप शायद। अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड और सिमिलरली अदर प्लैनेट्स मैग्नेटिक फील्ड वो हमें प्रोटेक्ट करती है किससे? कॉस्मिक चार्ज पार्टिकल से। सोलर विंड थोड़ा सा हल्का वर्ड है। जब भी किसी भी स्टार के कोर में वल्केनिक इरप्शन होता है, कॉस्मिक पार्टिकल्स निकलते हैं, गामा फोटॉन्स निकलते हैं, चार्ज पार्टिकल निकलते हैं, जिनमें बहुत हाई एनर्जी होती है, विच इज वेरी डेंजरस, राइट? अर्थ के मैग्नेटिक अरोरा। फील्ड से वो वापस, नहीं नहीं, अरोरा तो यही अंदर ही है, अरोरा तो नॉर्थ पोल के पास है। बाहर से कॉस्मिक पार्टिकल जैसे आने की कोशिश करते हैं, तो हमने वो कॉन्सेप्ट पढ़ा था ना, अगर बाहर से कोई चार्ज पार्टिकल आ रहा है, इफ इट इज एंटरिंग द एंगल ऑफ डेविएशन, अगर वो बाहर से परपेंडिकुलर आ रहा है तो 180 बना के वापस चला जाएगा, और अगर किसी एंगल पे आ रहा है तो उतनी एंगल पे बाहर निकल जाएगा। अर्थ मैग्नेटिक फील्ड प्लेज द सेम रोल। एनी हाईली एनर्जेटिक कॉस्मिक पार्टिकल, जैसे वो बाहर से अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करने की कोशिश करता है, द मैग्नेटिक फील्ड send that particle back into the space and we are safe. That is the most important role of Earth's magnetic field. Second, another important role is that with the help of the magnet or magnetic field, we can determine the north and south direction, which is used in the compass and navigation purpose. And based on that north and south, we have done the Earth's mapping. अर्थ को दो तरह से मैप किया गया है, एक जियोग्राफिक मैपिंग है और दूसरी मैग्नेटिक मैपिंग है। जैसे रनवे पे कुछ नंबर्स लिखे रहते हैं, दोज नंबर्स आर द मैग्नेटिक कोऑर्डिनेट्स, नॉट द लैटिट्यूड कोऑर्डिनेट्स। जो हम जीपीएस में भी कोऑर्डिनेट समझते हैं, देखते हैं, वो दैट इज अ मैग्नेटिक कोऑर्डिनेट, नॉट द जियोग्राफिक कोऑर्डिनेट, क्योंकि जियोग्राफिक तो करने का कोई और तरीका है नहीं, देयर इज नो अदर वे टू एग्जैक्टली डिटरमाइन द जियोग्राफिक लोकेशन। मैग्नेटिक मैपिंग से हम अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड हेल्प ले लेते हैं। विद द हेल्प ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड we can determine the location, except few mysterious places like Bermuda Triangle and some of the other islands where the compass doesn't work. क्यों वर्क नहीं करता? किसको पता है? Why Bermuda Triangle magnetic compass does not work? वहां पर अपनी भी कुछ करंट, इलेक्ट्रिक अटलांटिक ओशन में कुछ चार्ज करंट आती है। Because of that, there is another magnetic field that almost cancels out the Earth's magnetic field. तो वहां पे कंपास कुछ भी शो करता है, कभी इधर नॉर्थ, कभी इधर नॉर्थ, कभी इधर, कभी इधर। द कंपास इज बिहेविंग इरेटिकली, कुछ भी एट द वन ऑफ द प्लेस इज बर्मुडा ट्रायंगल। ऐसे बहुत सारे प्लेसेस हैं, दोज आर मार्क्ड, नॉट जस्ट वन बर्मुडा ट्रायंगल। अर्थ की मैग्नेटिज्म का दूसरा इंपॉर्टेंट रोल क्या है? एक तो नेविगेशन में हो गया, वी कैन फाइंड आउट द डायरेक्शन with the help of the magnetic field line। magnetic field line की डायरेक्शन में कोई भी कंपास अलाइन होता है, anywhere अर्थ मैग्नेटिक फील्ड हर जगह पर है, compass always align itself in the direction of earth's magnetic field, and based on few elements of earth's magnetic field we can determine the exact location। अर्थ की दो तरह से मैपिंग है, मतलब जियोग्राफिक एक्सिस, मैग्नेटिक एक्सिस। जियोग्राफिक इक्वेटर, मैग्नेटिक इक्वेटर। geographic latitude and longitude, similarly magnetic latitude and longitude। Third and again a very crucial role of earth's magnetic field is in the blood circulation। blood में क्या है? hemoglobin। hemoglobin के अंदर क्या है? iron। so that iron is ferromagnetic substance। because of earth magnetic field the blood circulation is also kind of maintained, and that's how there are certain rules of Vastu Shastra। You should not sleep with your head pointing in north direction। living body should not be pointed towards north। only after the death the dead body is buried towards north। नहीं पता तो कोई बात नहीं, नॉर्थ की तरफ सिर करके नहीं सोना चाहिए। दिस इज प्रोहिबिटेड इन वास्तु शास्त्र एंड साइंस आल्सो। The reason is because if you are pointing your head towards north,
blood circulation is from lower part to the upper body, and the heart has to pump the blood. Heart has to do excess work, which will cause बट सर ये भी damage. नॉर्थ डायरेक्शन में पढ़ना चाहिए हाँ? सर, ये फिर भी से तो बोलो। बोलते कि नॉर्थ डायरेक्शन में पढ़ना चाहिए फेस करके। नॉर्थ डायरेक्शन में पढ़ना चाहिए? ना ना, ऐसा नहीं बोला। ऐसे नॉर्थ किसने बोला? डायरेक्शन की तरफ फेस करके। अरे नहीं बेटा, उसमें थोड़ा कुछ और एंगल है। मैंने वास्तुशास्त्र पे एक प्रोजेक्ट किया था इन 11th नेशनल चाइल्ड साइंस कांग्रेस, वास्तु विद फिजिक्स एंड साइंस। विंडोज बोलते हैं नॉर्थ की तरफ होनी चाहिए, all the doors and windows, so that the earth's magnetic field should enter into the earth, and it has a magnetic energy, and that magnetic energy will be useful for an energetic environment. जैसे टेम्पल या किसी भी ऐसे सेक्रेट प्लेस पे अच्छा क्यों लगता है? यू फील बेटर? कुछ होता है ऐसा? नहीं। पर्सन टू पर्सन तो अलग ही है, बट रिलेटिवली घर में या ऐसे समझो, जो पहले सजा दी जाती थी काल कोठरी की, एक बंद कमरे में बिठा दिया जाता था, हाथ पैर जोड़ के बैठे रहो, कितना बड़ा ये रूम है, देयर इज नो स्पेस, दैट इज अगेन बिकॉज देयर इज नो एनर्जेटिक वाइब्रेशन, बिकॉज स्पेस इज लेस। जो राजा महाराजाओं के महल होते थे बहुत ऊंचे ऊंचे होते, क्यों? बिकॉज देयर इज एनर्जी, मोर एनर्जी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्लस एकॉस्टिक एनर्जी, साउंड एनर्जी। समझ गए? पहले होते थे ना ऐसे। सर उस टाइम में ये सब कैसे पता था उन्हें? उन्हें पता था, सब पता था उन्हें, पहले साइंस ज्यादा स्ट्रांग थी। प्रॉब्लम ये हो गई कि हम अपनी पुराने बीच में मुगल्स आ गए और बहुत सारे लोगों ने वो सारी चीजें आगे पास ऑन नहीं होने दी। बहुत सारी चीजें पहले पता थी, बट ठीक है, कोई बात नहीं, उसका रीजन है, एवरीथिंग हैज अ साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन। सो वास्तुशास्त्र का भी कुछ ऐसा ही एक्सप्लेनेशन है, बिकॉज आई डिड वेरी लॉन्ग प्रोजेक्ट। तो नॉर्थ की तरफ बेटा खिड़कियां और दरवाजे होने चाहिए, ताकि ये इंटर कर सके आपकी जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड की मैग्नेटिक एनर्जी है, विच विल एनर्जाइज। और वहां पढ़ोगे तो दिमाग अच्छे से काम करेगा, दैट्स द ओनली लॉजिक। Yes, में sir. क्वेश्चन नहीं आता यार, तो ऐसे ही मजे के लिए बता रहे हैं कि ऐसा मत समझो कि बकवास ही है ये, नहीं हो तो भी। हाँ, ऐसे ही कुछ होता है ईशान कोड नॉर्थ ईस्ट में, वहां भगवान बिठाने चाहिए, वो सब तो खैर थोड़ा अलग ही। हाँ? ईशान कोड होता है, कॉल्ड ईशान कोड। सब नॉर्थ ईस्ट में किचन भी होना चाहिए। हाँ, किचन के पास भगवान भी होने चाहिए बगल में, राइट। ठीक है, तुमने भी वास्तु पढ़ा लग रहा है। यू हैव इंटरेस्ट इन दिस। ठीक है, मेरा पार्ट केवल साइंटिफिक वाला था, सो आई एक्सप्लेन दिस इन दी, मतलब वास्तु को थोड़ी इंपॉर्टेंस मिलनी चाहिए, दैट वाज दी। तो आई मैंने वाज इन क्लास। एस्ट्रोलॉजी भी कर रखी है। क्या कर रखी है? सर एस्ट्रोलॉजी भी कर रखी है। एस्ट्रोलॉजी भी कर रखी है, अपना ही भविष्य बना लो भाई साहब। आई डोंट बिलीव इन एस्ट्रोलॉजी, बट ठीक है, ओके, वेरी गुड। कम बैक। अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का पहला रोल बाहर के पार्टिकल्स को वापस भेजना, दूसरा रोल डायरेक्शन बताना, तीसरा रोल ब्लड सर्कुलेशन को सही रखना। उसी के हिसाब से हमें यूज करनी चाहिए डायरेक्शन। एस्ट्रोलॉजी जैसा कुछ होता नहीं, पता नहीं, मतलब आई डोंट बिलीव। सो किसी एस्ट्रोलॉजर ने मुझे बोला था 20 से 25 की एज में तुम्हारे ऊपर मौत का संकट है, उसने मुझे कुछ 2025, एंड ही वाज सो प्रिसाइज कि इफ यू ड्राइव तो नहीं मरोगे, अगर किसी के पीछे बैठोगे तो चांस है। आई डोंट बिलीव ऑल दिस नॉनसेंस, तो ठीक है। सर वो डराने के लिए बोलते हैं। नहीं मतलब ठीक है, कुछ होता होगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। पहले कभी बहुत सारी साइंस थी, दिस वाज प्योर मैथ्स, लाइक न्यूमरोलॉजी इज मैथ्स। आई बिलीव इन न्यूमरोलॉजी बिकॉज आई हैव सीन द इफेक्ट। न्यूमरोलॉजी क्या होता है? लाइक माय बर्थ डेट इज 18, 1 + 8 is 9, 9 is my birth number। ऐसे हर एक नंबर के लिए कुछ कुछ चीजें हैं, लाइक योर नेम, उसका भी हर एक का कुछ अलग अलग होता है, बस
न्यूमरोलॉजी, समझ गए? जैसे वी का कुछ लेटर का मतलब होता है, ए का कुछ होता है, ए का कुछ होता है, वी का कुछ एडिशन, फिर उसको ऐड करते हैं, फिर कुछ करते हैं. दैट आई हैव सीन एक्सपीरियंस इन सम ऑफ द इंडिविजुअल केसेस. वो एक मैथ्स जैसी लगती है. एस्ट्रोलॉजी पता नहीं, नो आइडिया. सर वो भी अगर साइंस एस्ट्रोलॉजी, ही है। हमें तो ऐसा बताओ एस्ट्रोलॉजी में वन ऑफ द काउंटर लॉजिक क्या होती है, मैथ्स क्या होता है उसका बेस, तुम्हें पढ़ी है? सर प्लैनेट की डिग्रीज वगैरह सब देखी जाती हैं उसमें। हाँ तो वही बता रहा हूँ, प्लेनेट की डिग्रीज, प्लेनेट का अलाइनमेंट होता है कुछ, उसी एक पर्टिकुलर सेकंड पे कितने लोग पैदा होते हैं एक लोकेशन पे, एक तो नहीं होगा. सर तभी तो उससे टाइम और डेट और प्लेस भी देखी जाती है। तो एक ही टाइम पे एक ही प्लेस पे कम से कम 500-600 लोग तो होंगे. उसमें ऐसा स्पेसिफिक तो नहीं होता कि हाँ हाउस नंबर 1300, हाउस नंबर 1018, वो तो पूरा एक लोकेशन आ गया ना, गुड़गांव. गुड़गांव पे सेम डेट पे सेम पर्टिकुलर टाइम पे बहुत सारे लोग होंगे. यस, 200-500 तो होंगे. कुछ गांव में भी हो जाते हैं जिनका पता ही नहीं पड़ता है, हॉस्पिटल के छोड़ के. पहले जमाने में ऐसे ही होता था. आई वॉज नॉट बोर्न इन हॉस्पिटल, आई वॉज बोर्न इन दी हाउस, होम. तो इसलिए उन सबके भी जो सारी चीजें होती है उनमें बहुत डिफरेंस होता है, दी ओवरऑल लाइफ एंड ओवरऑल कैरियर एंड ओवरऑल. सो आई दिस इज लिटिल स्ट्रेंज फॉर मी टू अंडरस्टैंड एज अ लॉजिक. क्या? हाँ सही बात है. हाँ हाँ, वो तो चलो स्टार की लोकेशन पोजीशन थी, तुम पैदा हो गए, तुम्हारा नाम इससे होना चाहिए. दैट्स अ डिफरेंट थिंग. बट उससे कुछ मतलब ठीक है, हो सकता है इट माइट हैव बीन सम अदर मैथ्स, बट वो सही तरीके से आगे शायद पास ऑन नहीं हुई है. तो आई एम लिटिल, क्या बोलूँ मैं, आई एम नॉट बिलीवर ऑफ एस्ट्रोलॉजी. ठीक है, ना कि हमारे यहाँ कुंडली बनती, मेरी भी कुंडली नहीं बनी है फॉर द सेम रीजन. Okay, anyways, no disrespect to ancient knowledge, but anyways, come back. तो ये सब कुछ कुछ है, होता है, कुछ होता है, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ. I'm not saying it is not there, but logic थोड़ा सा अजीब है. मैग्नेटिक फील्ड की जो यूजफुलनेस है, सबसे पहले है अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड को बचाना, अर्थ को बचाना फ्रॉम द कॉस्मिक पार्टिकल्स, क्योंकि अगर वो नहीं होंगे तो, अगर पार्टिकल अंदर आ जाएंगे तो सारी लाइफ खत्म हो जाएगी. नेक्स्ट, अर्थ की मैपिंग कैसे करते हैं? लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल सर्कल्स, राइट. हॉरिजॉन्टल सर्कल्स को क्या बोलते हैं? लैटिट्यूड, इतने डिग्री नॉर्थ, इतने डिग्री साउथ विद रिस्पेक्ट टू द इक्वेटर. सिमिलरली कुछ लॉन्गिट्यूड होते हैं, ईस्ट एंड वेस्ट, और उनमें से जो लॉन्गिट्यूड नॉर्थ पोल और साउथ पोल से होके पास होता है, लॉन्गिट्यूड इज वर्टिकल सर्कल. वर्टिकल सर्कल पासिंग थ्रू नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, दैट इज कॉल्ड मेरिडियन. सो दिस विल बी कॉल्ड जियोग्राफिक मेरिडियन. जियोग्राफिक मेरिडियन, जियोग्राफिक मेरिडियन. फिलोसफी में भी कुछ पढ़ते मैग्नेटिक हैं फील्ड एनीथिंग. का सैटेलाइट पे भी कुछ इफेक्ट पड़ता है। मैग्नेटिक फील्ड का सैटेलाइट पे कोई इफेक्ट पड़ता है? जो पोलर सैटेलाइट होते हैं आसपास बिल्कुल होता है, और पोलर सैटेलाइट से ही हम उसकी लोकेशन डिटरमाइन करते हैं. बट जो दूर होते हैं सैटेलाइट, उन पे कुछ फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज दे आर, अच्छा, अब बहुत सारे अदर फैक्टर्स का इफेक्ट पड़ता है, सच एज वो आयनोस्फीयर के आयंस, वो भी रोटेट होते हैं, उनकी भी अपनी मैग्नेटिक फील्ड होती है. दे ऑल्सो चेंज द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड. सिमिलरली जब बहुत समर्स होती है, गर्मियों में, बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन द चार्ज पार्टिकल इन द अर्थ एटमॉस्फेयर, दे ऑल्सो हैव इट्स ओन मैग्नेटिक फील्ड which causes the disruption in the magnetism system, magnetic field. और सन से अगर कोई सोलर फ्लेयर प्रोड्यूस होती है, हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन बीम, नॉट अ कॉस्मिक बीम, इलेक्ट्रॉन की बीम आती है, तो वो भी सारा सिस्टम मतलब जो भी हम डेटा ट्रांसफर करते हैं कैसे करते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में भी मैग्नेटिज्म है,
मैग्नेटिक फील्ड है और वो भी खत्म हो जाती है, तो इंटरनेट स्लो हो जाता है या खत्म भी हो सकता है कुछ टाइम के लिए। इंटरनेट ट्रांसमिशन में भी कंप्लीटली डिसरप्टेड, ऐसा हुआ है। पावर सप्लाई, जो पावर ग्रिड जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बनती है, वो कई भी साल पहले हुआ मैग्नेट के। था। अभी 2 दिन पहले भी न्यूज आई थी कि सन पे कुछ हुआ है, वो आने वाला है अर्थ में, तो इंटरनेट सर्विस विल बी मतलब सम पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, हमेशा एक साथ तो हर जगह नहीं होगा, बिकॉज अर्थ इज स्फीयर। अगर यहाँ से यहाँ यूएस में हो रहा है तो इंडिया में नहीं होगा, है ना। ओके, सो कम बैक, अभी हम अपने मतलब का पढ़ लेते हैं, थोड़ा भटक रहे हैं। दिस इज सम लोकेशन मे बी। यहाँ पे अगर आपने हाथ में कंपास लिया और कंपास का नॉर्थ देखोगे तो वो किधर पॉइंट करेगा, दैट नॉर्थ विल बी पॉइंटिंग टुवर्ड्स द मैग्नेट का साउथ, और इस पोजीशन को हम, इस पर्टिकुलर लोकेशन को बोलते हैं मैग्नेटिक नॉर्थ पोल। क्योंकि नॉर्थ डायरेक्शन में इसलिए मैग्नेटिक नॉर्थ बोलते हैं, बट मैग्नेटिक नॉर्थ पोल इज एक्चुअली साउथ पोल ऑफ अर्थ मैग्नेट। सो एट एनी प्लेस ऑन अर्थ इफ यू पुट अ कंपास, कंपास का जो नॉर्थ है वो नॉर्थ मैग्नेटिक वाले की तरफ शो करेगा, नॉट द एक्चुअल नॉर्थ। अगर हमें नॉर्थ पोल पे पहुंचना है एंड वी आर फॉलोइंग द कंपास, तो हम नॉर्थ पोल पे कभी नहीं पहुंचेंगे, हम हमेशा पहुंचेंगे उसके मैग्नेटिक नॉर्थ पे, जो कि कुछ 18 किलोमीटर का डिफरेंस है दोनों के बीच में। राइट, ये समझ आ रहा है? यस सर। मैग्नेट किधर पॉइंट करता है? टुवर्ड्स द मैग्नेटिक नॉर्थ। हमें जाना है एक्चुअल नॉर्थ, हमारे लिए जो नॉर्थ डायरेक्शन है वो ये, एंड दिस इज द मैग्नेटिक नॉर्थ। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमें कितना ये गलत बता रहा है, व्हाट इज दैट एंगल। So that is the first element of Earth's magnetic field that should be known at every place on Earth to determine the actual direction. वो केवल सेंटर पे है, only at the center of the Earth core में जाके। सरफेस पे होगे हर जगह पे कर्वेचर की वजह से that angle will be different. It's 11.3 only at the center of Earth. अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड जिस डायरेक्शन में है नॉर्थ, जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड शो yes, the angle between actual north and the angle between magnetic north shown by magnet
दोनों के बीच का जो एंगल है दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, यानी इतना हम डिक्लाइन हो रहे हैं फ्रॉम द एक्चुअल नॉर्थ डायरेक्शन, एंड दिस डेटा शुड बी अवेलेबल टू लोकेट द एग्जैक्ट पोजीशन. सो पहला कंपोनेंट हो गया, एलिमेंट हो गया एंगल ऑफ डिक्लिनेशन. इसको हम अगर टेक्निकली डिफाइन करें द एंगल बिटवीन जियोग्राफिक मेरिडियन एंड एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मेरिडियन. जो मैग्नेटिक पोल से पास हो रहा है सर्कल दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक मेरिडियन. मेरिडियन क्या होती है? वो लॉन्गिट्यूड जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल से पास होती है और जिसकी हेल्प से हम डिसाइड करते हैं टाइम जोन. द एंगल बिटवीन जियोग्राफिक मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन, ये लिखने वाली डेफिनेशन है, समझने वाली डेफिनेशन. द एंगल बिटवीन एक्चुअल नॉर्थ, जियोग्राफिक नॉर्थ एंड नॉर्थ शोन बाय कंपास और द मैग्नेटिक. The angle between geographic meridian and magnetic meridian is defined as angle of declination. Is defined as angle of declination. और समझने के लिए the north shown by compass and the actual north direction, दोनों के बीच में जो एंगल होगा that angle is angle of declination. करेक्ट? समझ तो आई गया ना? ये हर जगह पे कुछ डिफरेंस होगा नॉर्थ के, एक्चुअल नॉर्थ और मैग्नेटिक नॉर्थ के बीच में. सेकेंड आते हैं अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है. अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड कुछ इंक्लाइंड है, नीचे एंगल पे निकलती है, ऊपर एंगल पे जाती है. सो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के दो कंपोनेंट्स भी होंगे, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल. हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ तरुण का फोन आया था, उसको फोन करके बोल देना टीपी सर की क्लास आज है ना, 8:30, 8:30 है 7:30. तो फोन ही कर देना, मेरे पास फोन आ रहा था. टीपी सर की क्लास करते हो? आ जाए ना. क्या पढ़ा रहे सर अभी? चैप्टर का नाम तो होगा कुछ. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हो गया खत्म? इंडक्शन पूरा खत्म? बीच में एक दिन तो क्लास नहीं हुई है सर की. हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड. सर विल रिवाइज फ्रॉम चैप्टर 1 फॉर द बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू. टर्म 1 का सिलेबस खत्म होने के बाद और मैं आगे बढ़ता रहूंगा इधर. सो अपना प्लानर उस हिसाब से बनाए. ठीक है? मतलब टर्म 1 एग्जाम होगा नवंबर में. ठीक है? बोर्ड एग्जाम नवंबर एंड दिसंबर फर्स्ट, ऐसे कुछ है. नवंबर एंड का टाइम है, नवंबर एंड से दिसंबर के बीच में, तो आप उसको नवंबर ही मान के चलिए. और अभी सितंबर शुरू हो चुका है. सो साथ साथ आपको प्रिपरेशन करनी है, बिकॉज इन दीज अनसर्टेन टाइम कुछ भी हो सकता है. हो सकता है सेकंड बोर्ड हो ही ना, पहले बोर्ड के मैसेज पर ही एमसीक्यू था. तो वह पेपर तो हो ही जाता है, मार्क्स भी तो होने चाहिए. अच्छा, हो ही जाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं. पढ़ना पड़ता है उसके लिए. एमसीक्यू में ज्यादा लोचा है. थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स, कंसेप्चुअल क्वेश्चन. ये अर्थ है, हम साइड से देख रहे हैं. दिस इज द इक्वेटर,
साउथ पोल और नॉर्थ पोल। साइड व्यू ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड इधर से साउथ पोल से निकलती है और फिर नॉर्थ पोल में अंदर जाती है, दैट इज द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड लाइन शेप। हमेशा परपेंडिकुलर ही निकलती है, ये वन ऑफ द प्रॉपर्टीज भी थी। मैग्नेटिक फील्ड हमेशा परपेंडिकुलर ही निकलेगी फ्रॉम द सरफेस। दिस इज द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, थोड़ी असिमेट्रिकल है, समझ लेना। इक्वेटर, दिस लाइन इज इक्वेटर, ये है साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल। अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड निकलते टाइम तो परपेंडिकुलर होती है सरफेस के, अर्थ के सरफेस के परपेंडिकुलर, B इज इक्वल टू BV। इक्वेटर पर हॉरिजॉन्टल हो जाती है, the whole magnetic field is in the form of horizontal component, but southern hemisphere में देखेंगे तो ये अर्थ से ऊपर की तरफ जा रही है, this is the earth's magnetic field। northern hemisphere में आएंगे तो नीचे की तरफ आ रही है। In the southern hemisphere, earth magnetic field is inclined above the earth surface, थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठी हुई है। so अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के दो कंपोनेंट एक्सप्रेस करते हैं, वन which is parallel to earth surface called as BH, horizontal component of earth's magnetic field, another which is perpendicular to earth's magnetic field, BV। जब निकलेगा तो सारा का सारा वर्टिकल, क्योंकि सरफेस के परपेंडिकुलर है। At the equator, all of the magnetic field, whole magnetic field is in the form of horizontal component, and in the north pole, it is horizontal and vertical is going into the earth. BH, BV, and B. These are the three components. BH को define कैसे करेंगे? BH is the horizontal component, the component parallel to earth surface. अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का वो कंपोनेंट जो अर्थ के सरफेस के पैरेलल है। जब हम किसी भी टेबल पे सपोज टेबल पे कंपास रखते हैं, कंपास इज नथिंग बट अ मैग्नेटिक डाइपोल, और मैग्नेटिक डाइपोल अपने को अलाइन करता है इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट। तो पोल्स पे परपेंडिकुलर होता है हमेशा। हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखेंगे तो वो कौन से कंपोनेंट की तरफ अलाइन करेगा? BH। सरफेस पे परपेंडिकुलर रख देंगे तो BV। और अगर वो फ्री है रोटेट करने के लिए, क्योंकि कंपास क्या होता है, कंपास किसी बॉक्स में डिब्बे में बंद होता है, सो इट हैज फ्री एक्सिस ऑफ रोटेशन ओनली आइदर X और Y बिकॉज ऑफ दिस हिंज। या तो वो X में रोटेट होगा या फिर Y में होगा। इफ इट इज फ्री टू रोटेट ऑन द X एक्सिस, it will be aligned in the direction of BH. If it is free to rotate in the vertical plane, it will be aligning itself in the direction of BV. और एक स्पेशल टाइप का कंपास होता है which is free to rotate in X as well as Y. तो वो X as well as Y दोनों में ऑसिलेट होने के लिए फ्री है। That will be always aligning itself in the direction of net magnetic field. और उससे हम तीसरा एलिमेंट डिफाइन करते हैं called as angle of dip or angle of inclination. Angle of declination is the angle between actual north and magnetic north. Angle of inclination or angle of dip represent कि अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल से कितना ऊपर इंक्लाइंड है या कितना नीचे डिप है। इन सदर्न हेमिस्फीयर दिस विल गो अबव, हॉरिजॉन्टल से ऊपर की तरफ, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। In the northern hemisphere, this goes down the horizontal, below the horizontal, hence called as angle of dip. Horizontal component of Earth's magnetic field, और तीसरा element होता है angle of dip. These are the three elements of Earth's magnetic field required for complete information of Earth's magnetic field. Third is angle of dip or angle of inclination.
एंगल ऑफ इंक्लिनेशन का नाम है सदर्न हेमिस्फीयर में क्योंकि ये ऊपर उठ गया है. An angle of dip is used in the northern hemisphere as it is below the x-axis. Definition wise, as the diagram says, this is angle between horizontal component and net magnetic field. Net magnetic field BV और BH दोनों का resultant होगी, BV square plus BH square. और जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है वो थोड़ी वीक है. दिस इज 0.4 गॉस. 1 गॉस इज 10 to the power minus 4 टेस्ला. 0.4 into 10 is to power minus 4 Tesla. Angle of dip is angle between horizontal component and net magnetic field. Angle between horizontal component and net magnetic field of Earth. Net magnetic field of Earth. So this delta is the angle that the resultant makes. BV और BH का resultant, tan delta is BV by BH. डेल्टा के टर्म्स में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी लिख सकते हैं, वर्टिकल कंपोनेंट भी लिख सकते हैं. BH is B cos delta. BH will be B cos delta and BV is equal to B sin delta. Horizontal component B cos delta, vertical component B sin delta, और डिवाइड करेंगे तो tan delta is BV by BH. Delta is angle of inclination or angle of dip. These are the three components जिनको यूज करके हम अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड को कंप्लीटली रिप्रेजेंट करते हैं फॉर द नेविगेशन पर्पस और फॉर एनी अदर एप्लीकेशन. अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड, अब ये एंगल ऑफ डिप जो है ये पोल्स पे कितने होंगे? पोल्स पे मैग्नेटिक फील्ड इज वर्टिकल, ऑलरेडी वर्टिकल हॉरिजॉन्टल से. एट पोल्स व्हाट इज द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन? 90, because the net magnetic field is towards vertical. At equator angle of dip is 0 क्योंकि वो horizontal के direction में ही है. At the poles angle of dip is, और जिस apparatus से हम यूज करते हैं इसको मेजर करने के लिए, that is called dip circle. इसमें जो compass होता है, this compass is free to rotate in x as well as y direction. तो ये horizontal और वर्टिकल दोनों प्लेन में, इट्स कॉल्ड डिप सर्कल. उसके लिए पहले क्या करते हैं, सर्कल का जो प्लेन है उसको मैग्नेटिक मेरिडियन में, मैग्नेटिक मेरिडियन साउथ टू नॉर्थ, जिस प्लेन में अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है उस डायरेक्शन में उसको हम पहले इंक्लाइन करते हैं. सो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पहले BH के डायरेक्शन में BH जोड़ते हैं किधर है, और फिर मेरे बिकॉज इज फ्री टू रोटेट इन y डायरेक्शन तो ये अपने आप B के डायरेक्शन में अलाइन हो जाता है. So that vertical plane which contains BH, horizontal component of Earth's magnetic field, and vertical component, उस plane को हम बोलते हैं magnetic meridian. Magnetic meridian is the plane which contains BH, BV and B at any place on Earth. That is called magnetic meridian plane. ये डायग्राम में हटा देता हूँ बड़ा वाला, इसकी जरूरत नहीं है अभी. Now next term is, अगर सपोज हमें कहीं पे मैग्नेटिक मेरिडियन नहीं मिल पाता है या मैग्नेटिक मेरिडियन नहीं पता है, then some other plane if we find out the dip angle, that's called apparent dip angle. जैसे इस प्लेस पे, यहाँ पे this location of Earth, इसमें से कोई एक प्लेन होगा जो मैग्नेटिक मेरिडियन है, बट मैग्नेटिक मेरिडियन ढूंढने के लिए हमें कंपास चाहिए और कंपास से भी हम एग्जैक्टली लोकेट नहीं कर पाते हैं. रीजन बीइंग क्योंकि आसपास भी बहुत सारी मैग्नेटिक फील्ड है, वायर है, वायर में करंट है, करंट की मैग्नेटिक फील्ड है. So it will be very difficult to locate the exact magnetic meridian. तो इसलिए कुछ और जुगाड़ करते हैं. Some magnetic meridian. So अगर magnetic meridian में रखा हुआ है dip circle, तब तो वो actual dip angle को point करेगा. If it is at some other dip angle, some other plane, then it will be representing apparent dip angle or virtual dip angle.
True and apparent dip angle. Next concept. Angle of dip is actual dip angle is in magnetic meridian plane. Magnetic meridian जिसमें all the three component of Earth's magnetic field lie BH, BV and B. True and apparent dip angle. True dip angle is in the actual magnetic meridian plane. ये थोड़ा 3D figure है, आराम से समझना. This is like one plane. This is magnetic meridian plane. Suppose, let's say this plane of the board, that is magnetic meridian plane. अगर ये magnetic meridian है, तो horizontal component of magnetic field will be BH in this. Vertical component of magnetic field will be BV in this. और दोनों का जो resultant होगा, that resultant is B. This is a magnetic meridian plane, horizontal component BH, vertical component BV, and Earth's magnetic field B. All three lie in the same plane. नहीं, ये तो थोड़ा 3D है, इसलिए पीछे लगा हमने. This is the same plane. कोई भी plane है सीधा सा. This is the magnetic meridian plane. BH, BV और B इस plane में नीचे की तरफ. Because of this, यहाँ पे अगर हम dip circle रखते हैं तो वो नीचे की तरफ आएगा. That angle is called actual dip angle or true dip angle, delta. Tan delta, where delta is the actual dip angle, will be defined as BV by BH. अब हमने इस प्लेन को नहीं ढूंढने की कोशिश की, या सपोज देयर इज सम अदर प्लेन, गलती से या किसी दूसरे एंगल पर हमने मैग्नेटिक मेरिडियन से थीटा एंगल पर एक दूसरा प्लेन लिया फ्रॉम द सेम प्लेस, इसी बोर्ड की लोकेशन पे, but not from the magnetic meridian. We have chosen some other plane. So suppose this is magnetic. This is magnetic meridian plane. उससे थीटा एंगल पर हमने एक दूसरा प्लेन ले लिया. There is another plane, right? दोनों के बीच का जो एंगल है, this angle is theta. There is another plane. This one is magnetic meridian. This is another plane P. दोनों के बीच में एंगल है theta. And this plane is, when the dip circle is placed in this plane, the dip angle shown will be called as apparent dip angle. Apparent dip angle in this plane P, दोनों के बीच का एंगल थीटा. सो ये था मैग्नेटिक मेरिडियन में. मैग्नेटिक मेरिडियन प्लेन में डेल्टा इज द एक्चुअल डिप एंगल. मैग्नेटिक मेरिडियन से थीटा एंगल पर हमने प्लेन को दूसरा प्लेन चूज किया है. इन दैट प्लेन इट इज BH cos थीटा. इट इज BH cos थीटा और दूसरा है BV. दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा दैट इज B डैश. अभी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट BH से चेंज हो गया, दैट बिकेम BH cos थीटा. BH cos थीटा और BV का जो रिजल्टेंट है दैट इज B डैश in the plane P inclined at an angle theta with magnetic meridian plane. क्रिस समझ आ रहा है? डायग्राम, PD डायग्राम थोड़ा सा है. Is it clear? It's like Yes. a book, open book. One page is magnetic meridian, other page is another plane, और वो same place पर ही है. So BV दोनों के लिए common है. Inclined at an angle theta with magnetic meridian. Tan delta dash will be equal to BV divided by BH times cos theta. BV by BH कितना हुआ? BV by BH कितना? Tan delta. So we can replace that BV by BH is tan delta. That is the relation between actual dip angle and apparent dip angle. Tan delta dash is tan delta by cos theta.
tan delta dash is equal to tan delta by cos theta. ये है रिलेशन बिटवीन द एक्चुअल डिप एंगल एंड अपेरेंट डिप एंगल बिटवीन द plane P which is at an angle theta with respect to magnetic meridian plane. अब इसका फॉर्मूले का यूज क्या है वो देखते हैं. लाइक आई सेड मैग्नेटिक मेरिडियन को ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल होता है बिकॉज आसपास और भी बहुत सारे मैग्नेटिक इफेक्ट वाले एलिमेंट्स मौजूद हैं. सम ऑफ द करंट कैरिंग वायर, सम ऑफ द मैग्नेटिक मटेरियल्स. So instead of using the apparent plane magnetic meridian plane, हम दो apparent plane लेते हैं जो आपस में perpendicular हो, and using those two we determine the actual dip angle at any place. ये थोड़ा सा theoretical topic है. Theoretical मतलब numerical तो है इस पे, but again not that hardcore numerical. कुछ इंटीग्रेट डिफरेंशिएट नहीं करना है, आपको सिर्फ समझना है डायग्राम. ये डायग्राम क्लियर. एक नीचे मेरिडियन से थीटा एंगल पे दूसरा प्लेन मैग्नेटिक मेरिडियन में रखे तो थीटा डेल्टा एंगल पे डिप सर्कल शो करता है, और दूसरे प्लेन में रखते हैं थीटा एंगल पे देन डेल्टा डैश. रिलेशन बिटवीन देम इज tan डेल्टा डैश इज tan डेल्टा बाय cos थीटा. Okay, now we can see if suppose there are two perpendicular plane P1 and P2, किसी पॉइंट पर जहां हमें एक्चुअल डिप एंगल कैलकुलेट करना है, हम वहां पे दो परपेंडिकुलर प्लेन रखते हैं. टू परपेंडिकुलर प्लेन्स P1 and P2. The apparent dip angle is delta 1 and delta 2. Apparent dip angles are delta 1 and delta 2. So in delta 1 और delta 2 को calculate करके measure करके we can find out delta very easily with the help of this previous formula. So ये इनका top view है. This is plane P1 जो अंदर की तरफ है. This is another plane P2 which is again going into the plane, और दोनों एक दूसरे के perpendicular है 90 degree. Plane P1 and P2 are perpendicular to each other. This is like again two perpendicular planes placed like this. So these are the two plane P1 and P2, दोनों एक दूसरे के perpendicular है. ऊपर से हम देख रहे हैं, that is the view. So 90 degree is the angle. दोनों में से कोई भी मैग्नेटिक मेरिडियन प्लेन नहीं है, बट दोनों आपस में परपेंडिकुलर है. इन बिटवीन सपोज देयर इज मैग्नेटिक मेरिडियन के अलॉन्ग होगा BH. इन द मैग्नेटिक मेरिडियन प्लेन द एंगल ऑफ डिप इज डेल्टा. In the first plane it is delta 1, in the second plane it is delta 2. Delta 1 delta 2 हमें पता है. We can find delta in terms of delta 1 delta 2. अगर ये पहले वाले plane से theta angle पर है, it will be 90 minus theta with respect to the second plane. With the help of this apparent formula हम दोनों को relate कर सकते हैं. प्लेन P1 में apparent angle is delta 1 is equal to tan delta divided by cos theta. फिर आते हैं प्लेन P2 में. in the second plane tan delta 2 is equal to tan delta divided by cos 90 minus theta. Cos 90 minus theta is sin theta. This is the second plane. Tan delta 1 and tan delta 2 in terms of cos theta. एक में आया cos theta, दूसरे में आया sin theta.
cos थीटा और sin थीटा को एलिमिनेट करना इजी है, कैसे? विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. So we can calculate sin theta and cos theta from these two relation. Sin square theta plus cos square theta is equal to 1. Sin theta की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से tan delta by tan delta 2, tan delta by tan delta 2 का होल स्क्वायर. Cos theta की वैल्यू इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो tan delta by tan delta 1. This whole square will be equal to 1. पूरी इक्वेशन में tan स्क्वायर डेल्टा से डिवाइड कर देते हैं. 1 by tan स्क्वायर डेल्टा 1 प्लस 1 by tan स्क्वायर डेल्टा 2 is equal to 1 by tan स्क्वायर डेल्टा. और cot स्क्वायर डेल्टा 1 प्लस cot स्क्वायर डेल्टा 2 is equal to cot स्क्वायर. हाँ बेटा, नहीं, 1 से cos थीटा की वैल्यू निकाली है, 2 से sin थीटा की वैल्यू निकाली है और दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर दिया. Using the trigonometric identity. Cot square delta 1 plus cot square delta 2 is equal to cot square delta. We use this sin square plus cos square is equal to 1, this identity to calculate. Right? Okay, very good. So ये अर्थ मैग्नेटिज्म वाला पार्ट खत्म हो गया. कुछ छोटे से अजीब अजीब से क्वेश्चंस हैं in the NCERT that you can see. Short-term change and long-term change in Earth's magnetic field is because of some volcanic activity in the ocean floor, because of some small change, short-term change because of the solar flare and solar wind. Earth की magnetic field थोड़ी बदलती रहती है from place to place. ठीक है. तो जैसे अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है वैसे ही गैलेक्सीज की भी अपनी फील्ड होती है, बट वो बहुत और वीक होती है. The whole space there is some earth, some magnetic field. Okay, right. Can aurora borealis and aurora australis be seen from anywhere in India? अरोरा बोरियोलिस एंड अरोरा ऑस्ट्रेलिस क्या था? पोल के आसपास ग्रीन कलर की लाइट. इंडिया से दिख सकती है कभी? No, sir. कोई चांस ही नहीं है. दिस इज नॉट नियर द पोल, ओनली क्लोजर टू द नॉर्थ पोल. एंड तो ये हो गई अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड. नेक्स्ट क्लास दिखती है यूएस में. ओके, नेक्स्ट क्लास वी विल सी द permanent magnetism or magnetization of material. So tomorrow we will be finishing this chapter, including the yesterday's lecture. तो जिन्होंने नहीं किया था attend, please go through the videos. कल ही chapter. Yes. Okay, I think tomorrow is a test also, that is on magnetic effect of current, moving charge and magnetism वाली part. First part. Test will be
ऑनलाइन, सर ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव? ओनली ऑब्जेक्टिव MCQ because of the term 1 being MCQ, it is MCQ only. ठीक है, चलो, okay then, thank you.